Right, guys, let's get started. Assalamu alaikum. My name is Hasnain Mankani, and I'm one of the co-founders of premed.bk. और उसके साथ में I'm also a third year medical student at the Aga Khan University, and I'm really glad to introduce all of you to our teacher for the MDCAT Improver course. थोड़ा सा आपको मैं एक फीडबैक दूं और थोड़ा सा एक आइडिया दूं कि ये कोर्स है क्या बिफोर अली स्टार्ट्स हिज डेमो क्लास. So essentially, this year तकरीबन 1,80,000 बच्चों ने MD का दिया in Pakistan, and a lot of them got really good scores. अभी तक JSMU और ETA के scores नहीं आए, and कभी चल रही है कभी there might be like a reset scene के they might have to give the test again. But जो बाकी provinces हैं उनके scores आ गए हैं, and a lot of people have told us कि they did not score that well, unfortunately. Some kids scored very well. अभी they're using our merit calculator on premed.pk, and वो बता रहे कि हमारा इस specific university में admission इंशाल्लाह हो जाएगा. But there's a good chunk of people who did not score well, and this basically course is for those students. Now, सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि it is completely okay. मैं when I also was applying did not get into AKU, and I totally know how it feels. It doesn't feel good. It doesn't feel that great. It feels like you've let down a lot of people in your family, in your friends and circle. But the real thing is that जो ये पूरी MD-CAT की journey है ना, and it's actually जो medicine की journey है, it has a lot of up and down. So ये ना ये you need to realize कि ये सिर्फ एक start है. I'm not scaring any of you, but you should realize that it's completely okay. You are not alone in this journey. There have been countless before you who did not ace that exam the first time, but then they reapplied and they actually got into their dream medical universities. So this is a time not to become very sad, but this is a time to just relax, to basically focus on your habits, to spend time with family, and also then for example, start studying again for the MD-CAT. ट्रस्ट मी, लेट्स से अगर आपका एक 160 170 स्कोर आता और आप एक सब पाव यूनिवर्सिटी जाते, आपको वहाँ 5 साल मजे नहीं आते, उससे बेहतर मैं ये सजेस्ट करता कि आप लेट्स से एक गैप ईयर ले लो, आप रीअप्लाई कर लो, एंड देन यू गेट लाइक 195 एंड देन यू गो टू द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ योर प्रोविंस लाइक कीमू या डाओ या AQ, इस तरह की. सो आई वुड रियली सजेस्ट कि थिंक अबाउट दैट एज वेल व्हेन यू डिसाइड कि आपको कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है. सो अब जो इस पूरा सेशन की हम बात करें तो बेसिकली ये जो है एक इम्प्रूवर कोर्स है फॉर स्टूडेंट्स जो फॉर एग्जांपल एमडी कैट वापस देने का सोच रहे हैं अगले साल. ठीक है, 2024 का एमडी कैट के जो बच्चे सोच रहे हैं उनको ये लिए कोर्स हमने बनाया है, एंड द आइडिया इज कि बेसिकली इज गोना स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर. बट इसेंशली इसमें क्या होगा कि हम आपको फॉर एग्जांपल हर दिन नहीं पढ़ा रहे होंगे, हम आपको वीकेंड्स पे पढ़ा रहे होंगे, बिकॉज वी नो कि ड्यूरिंग द वीक डे आप लेट्स से कोई अकेडमी जा रहे हो, आप कोई हॉबी पे फोकस कर रहे हो, तो जो वीकेंड है ना उस पर आपको तकरीबन 3 घंटे की पढ़ाई करनी होगी ऑन सैटरडे एंड संडे. इस तरह क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई है ना वो वापस रिवाइज हो रही होगी. वी नो दैट यू गिवन द एमडी कैट, यू नो योर कॉन्सेप्ट्स, बट जो एक रिविजन होता है ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स भूलने न लग जाएं, ये कोर्स विल सर्व एज दैट. I'll discuss the teachers, I'll discuss everything later on. जो डेमो क्लास है वो अली दे रहे हैं, and he'll be teaching chemistry. Basically Ali जो है he's a TA at Nexer, a teaching assistant at Nexer, पहले रह चुके हैं for 2 years, and he has vast experience in teaching students. He's taught O level, A level students. इसके साथ साथ जो फ्रेंड्स फैमिली को वैसे पढ़ाते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो तो पढ़ाते ही हैं, but he has a lot of experience in teaching students, and that's why we chose him for our chemistry section, because we believe that Ali will be a very vital contribution to all of you scoring very well on the chemistry section in the MTCAT. Because बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं केमिस्ट्री में वीक है, ऑर्गेनिक नहीं हो रहा, इनऑर्गेनिक नहीं हो रहा, एंड एसेंशियली हम आपको, मैं पहले से बता रहा हूँ, बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे होंगे. सही है ना, वी विल बी स्क्रीन शेयरिंग, वी विल बी टीचिंग ऑन एन आईपैड, बट हो ये रहा होगा कि देयर बी अ कांस्टेंट डिस्कशन. यू विल बी आस्किंग क्वेश्चंस, वी विल आंसर दोस क्वेश्चंस. यू विल बी आंसरिंग कॉन्सेप्ट्स, वी विल बी आंसरिंग कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से कि किस तरह फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है, किस तरह इसके क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह आपको ये याद करना है, क्या निमोनिक्स हैं, क्या शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इस तरह की चीज़ें. राइट, यूनिक कोर्स, एंड ट्रस्ट मी, मैं रिव्यूज दिखाऊंगा आपको. हमने लास्ट ईयर यही लॉन्च किया था, एंड किड्स एब्सोल्युटली लव्ड इट. So Ali, by the way, has 180 in the MD-CAT, mashallah, and he's an amazing student, very smart. I'm pretty sure you love his teaching style as well. If you have any questions, not related to the course, because वो हम आगे जाके आपको हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे, but actually related to, for example, किस तरह classes होंगी, किस तरह for example teachers हैं, क्या pricing and all. So keep asking them on the YouTube section, and then फिर वहाँ से मैं आपको जवाब देते रहूँगा. So Ali, over to you, and let's get started.
Hello, assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, you're audible. Okay. So I'll get started, but before I get started, यार मेरा बस तुम लोगों से ये बात करनी है कि the way I'm going to be handling this course is कि my main goal over here is not कि मैं बस किताब की लाइनें आप लोगों को बताता रहूं. My main goal over here is कि मैं खुद obviously MD CAT दे चुका हूँ last year and this year, and I through my own experience, I realized that, you know, there is a lot to remember, there's a lot to learn. ठीक है. एंड बायोलॉजी में तुम लोगों को ऑलरेडी बहुत लर्न करना पड़ेगा, एंड द लेस amount of time that you have to spend on rectification and the less amount of time that you have to spend on memorizing, the more time you're going to get for past papers and all of that. तो the way that I'm going to handle it is कि मैं तुम लोगों का पहले कॉन्सेप्ट इंस्टिल करा दूंगा. तुम लोगों को पहले मैं कंसेप्चुअली क्लियर कर दूंगा, एंड इफ और चीजें बतानी होंगी देन ऑब्वियसली आई विल बी यूजिंग योर टेक्स्ट बुक्स, बिकॉज अगेन टेक्स्ट बुक्स आर द मेन प्लेस जहां से तुम लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे. बट फर्स्ट आई विल बी गेटिंग इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग्स. So without further ado, I'm gonna start screen sharing. Ali, we can't see your screen. You can't? One second. And Ali, is it possible for you to open your camera? um I don't think so right now because I am on my tablet, तो मैं उसी के ऊपर पढ़ा रहा हूँ. चलो ठीक है. Next time के लिए we'll also have the camera open, by the way. All right, sure. Okay, so I'll be getting started with atomic structure. Okay. और अगर किसी को भी कुछ कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, यू गाइस कैन आस्क. लेट्स गेट स्टार्टेड. लाइक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन एटम? एटम, अब लाइक चाहे आप जिस भी ग्रेड से हो, चाहे आप कहाँ से भी हो, बाय नाउ वी ऑल प्रोबब्ली हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट एन एटम इज, राइट? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. और एटम के अंदर वी studied that an atom has a structure kind of like this, and उसके अपने अंदर के सब पार्टिकल्स होंगे, राइट? सो इट्स गोइंग टू हैव अ न्यूक्लियस जो कि उसके सेंटर में होगा, राइट? एंड along with that it is going to have shells. ठीक है. सो these are the two basic parts जिसके अंदर हम लोग एटम को डिवाइड कर देते हैं, राइट? एंड वी ऑल pretty much have a very clear idea of that, राइट? तो न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस में देयर इज मेनली गोइंग टू बी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. और न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू बी न्यूट्रली चार्ज्ड, राइट? एंड शेल्स में क्या हो रहा होता है? शेल्स में देयर इज इलेक्ट्रॉन्स एवरीवेयर, राइट? सो एटम इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू दीस टू पार्ट्स. ठीक है. ये दो हिस्सों में एटम डिवाइड हो गया. अब न्यूक्लियस में हमारे पास ये दो चीजें आ गई, शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अब द थिंग इज कि ना, न्यूक्लियस तो लोग समझ जाते हैं, न्यूक्लियस में समझ जाते हैं कि प्रोटॉन्स आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए. शेल्स का एक बहुत बड़ा जो मिसकंसेप्शन होता है ना, वो ये होता है कि शेल्स आर समथिंग जो टेंजिबल है, जो कि फिजिकल है. लेकिन शेल्स जो है ना, वो हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पाथ को कहते हैं. शेल्स आर बेसिकली जस्ट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्बिट्स, इनको हम ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं. ठीक है. वाई? बिकॉज आपका फॉर एग्जाम्पल अर्थ जो है, दैट्स रोटेटिंग अराउंड द सन, राइट? लाइक दिस. सही है. रिवॉल्विंग अराउंड द सन. उसके पाथ को हम क्या कहते हैं? इज दैट टेंजिबल? इज दैट फिजिकल? नहीं. लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं. इसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से रोटेट कर रहा होगा या रिवॉल्व कर रहा होगा, व्हाट इज इट गोइंग टू बी कॉल्ड? इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एन ऑर्बिट, और इट इज गोइंग टू बी नोन एज अ शेल. और उसके पाथ को हम लोग शेल बोल रहे हैं. ठीक है. इट्स नॉट समथिंग टेंजिबल. सो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा. एंड वन क्वेश्चन दैट यूजुअली कम्स अप इज कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता क्यों है? व्हाई इज इट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस? एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो जा रहा है तो वो एग्जैक्टली सर्कुलर तरीके से क्यों जा रहा है? वो रिवॉल्व क्यों कर रहा है? व्हाई इज इट नॉट जस्ट गोइंग इन वन डायरेक्शन और वो बाहर क्यों नहीं निकल जाता, राइट? सो why does it not go outside? And that is because electron होता है negatively charged, right? Proton होता है positively charged. So this is something known as the nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज ये होता है कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा दैट्स गोइंग टू बी नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है बिकॉज दे आर ऑपोजिटली चार्ज्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है दिस कीप्स ऑन रिवॉल्विंग और रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन दिस पाथ व्हिच वी कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। ठीक है, तो आई होप एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज क्लियर विद दैट, राइट। मूविंग ऑन, अब हमने बात की शेल्स के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आगे जाते हैं डिटेल के अंदर, सही है। सो शेल्स आ गई, शेल्स को हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। अगर हम लोग शेल्स को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें देन इट विल बी नोन एज अ सबशेल। एंड देन अगर हम सबशेल्स की फर्दर डिटेल में जाएं तो then they're going to be known as orbitals. Now exactly what are subshells, what are orbitals? तो अगर आप shells को further break down करोगे into even more detail तो वो subshells हो जाएगी, और फिर अगर सबशेल्स को और फर्दर ब्रेक डाउन करोगे देन दे विल बी डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल जो है दैट विल बी वो एरिया जहां पे हमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की पॉसिबिलिटी सबसे हाई है। व्हाट डज दैट मीन? मतलब कि क्योंकि ये सबसे ज्यादा माइक्रोस्कोपिक, सबसे ज्यादा यू नो मैग्निफाइड फॉर्म है, सबसे ज्यादा ब्रोकन डाउन फॉर्म है, ठीक है। ऑर्बिटल के अंदर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन ढूंढने की, क्योंकि वो सबसे छोटा हिस्सा आप कह सकते हो शेल का है, राइट। सो शेल्स, सबशेल्स, ऑर्बिटल्स, ये तीन डिविजन आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। शेल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मेनली आती हैं चार शेल्स, ठीक है। शेल्स जो हमारे पास आती हैं वो आती हैं KLMN, ठीक है, KLMN। तो फर्स्ट शेल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? K, सेकंड शेल L, थर्ड शेल M, फोर्थ शेल N, ठीक है। सबशेल्स जो होती हैं उनके अलग नाम होते हैं। तो फर्स्ट सबशेल इज गोइंग टू बी नोन एज S, सेकंड सबशेल इज गोइंग टू बी नोन एज P, थर्ड सबशेल को हम क्या बोलेंगे D, और फोर्थ सबशेल को बोलेंगे F। अब डिफरेंट शेल्स में डिफरेंट सबशेल्स होंगे, ठीक है, एंड आई विल गेट ऑन टू दैट, मैं उसके अंदर थोड़े टाइम में बात करूंगा। बट इनके ये नाम है, ठीक है, शेल्स के नाम है KLMN, सबशेल्स के नाम है SPDF, ठीक है, एंड ऑर्बिटल्स के नाम हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम K शेल में बात करें ना, तो K शेल हैज ए मैक्सिमम कैपेसिटी। देखो, जब भी हम किसी भी शेल के बारे में बात करेंगे, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ शेल विल ऑलवेज हैव ए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो होल्ड कर सकती है, ठीक है। शेल में हमेशा एक लिमिट होगी इलेक्ट्रॉन्स की जो वो खुद होल्ड कर सकती है। तो ये एक जनरलाइज जो हम लोग लिमिट बोलते हैं ना, वो होती है 2, 8, 18, 32। तो पहली शेल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती है, सेकंड शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती है, थर्ड शेल मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती है, एंड फोर्थ शेल मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती है, ठीक है। सो अब फर्स्ट शेल में अगर मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है तो फर्स्ट शेल इज गोइंग टू हैव एन S ऑर्बिटल, एन S सबशेल, और उसमें एक ऑर्बिटल है। फिर हम देखते हैं L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है, सो उसमें हमारे पास S सबशेल भी है एंड P सबशेल भी है, और उसमें हमारे पास 1 and 3 मतलब 4 ऑर्बिटल्स आए। तो नाउ व्हाई आर दीज डिफरेंट शेल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ सबशेल्स, पहली बात, एंड व्हाई आर दे हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब इनमें ऑर्बिटल्स क्यों डिफरेंट आ रही हैं और इनमें सबशेल्स क्यों डिफरेंट आ रही हैं, और ये सब क्या क्यों हो रहा है, राइट। तो उसके पीछे भी रीजंस हैं, ठीक है। और रीजंस क्या हैं? देखो, हर सबशेल की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। जैसे हमने कहा एक शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसी तरह एक सबशेल की भी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो जब हम एस सबशेल के बारे में बात करते हैं ना, एस सबशेल के बारे में, तो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की। जब हम पी सबशेल के बारे में बात करेंगे दैट विल हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, और डी सबशेल जो होगी उसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी होगी 10 इलेक्ट्रॉन्स की। हमने अभी ऑलरेडी बात की कि हमारे पास 2, 8, 18, 32 ये हमारी शेल्स की मैक्सिमम कैपेसिटीज थी। तो मुझे बताओ, अगर हमारे पास फर्स्ट शेल में सिर्फ मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है और हमारी सबसे पहली सबशेल S होती है, सो जब हमारे पास S आ जाएगी यहाँ पे, विल वी नीड टू गो ऑन टू P? क्या हमें P की तरफ जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, राइट, हमें P की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज इसकी कैपेसिटी ऑलरेडी S फुलफिल कर देगा, ठीक है। तो S इसकी ऑलरेडी कैपेसिटी फुलफिल कर देगा, एंड एक ऑर्बिटल की है। अब एक ये बात सुनो,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बिकॉज अक्सर ना पास पेपर्स में, स्पेशली एमडी कैट के पास पेपर्स में एक सवाल आ जाता है, और सवाल आता है कि ना एक ऑर्बिटल है, देयर इज एन ऑर्बिटल इन द पी सबशेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन इट होल्ड मैक्सिमम। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख के आंसर को आ जाते हैं, लेकिन सवाल ने आपसे सबशेल का नहीं पूछा, इन्होंने आपसे सबशेल का नहीं पूछा, सवाल ने आपसे पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन दी ऑर्बिटल ऑफ दिस पी सबशेल होल्ड। डू यू गेट इट? देयर इज अ डिफरेंस। उसका मतलब ये है कि वो ऑर्बिटल की बात कर रहा है, वो सबशेल की बात नहीं कर रहा। सबशेल में तो मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, बट ऑर्बिटल में मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी? हमेशा ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो हमेशा होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सही है? हमेशा एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। सो बिकॉज अगर 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 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल होल्ड कर सकता है, अगर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे K में मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल में, तो एक s ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1s सबशेल विल हैव 1 ऑर्बिटल। सही है? सो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। वी डिस्कस्ड कि s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और d सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उससे हमें पता ये चलता है, यार देखो, अगर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती है, तो s सबशेल के पास हमेशा एक ऑर्बिटल आएगी, ठीक है। इफ वी गोना टॉक अबाउट द p सबशेल, अगर p में हम कहते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो p में कितनी ऑर्बिटल्स आ जाएंगी? 3 ऑर्बिटल्स, राइट। 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, तो हर ऑर्बिटल में दो 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 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगी। इन द सेम वे d में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो d के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स आ जाएंगी? 5 ऑर्बिटल्स आ जाएंगी, राइट। तो आई होप तुम लोगों के लिए, सबके लिए ये चीज भी क्लियर हो गई है अब। तो ये s के अंदर एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, और d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, मूविंग ऑन। तो एक ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी है ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी वजह से, बिकॉज हमने कहा L के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। फर्स्ट सबशेल कौन सी होती है? S। हमने S फिल कर दी, ठीक है। S फिल हो गई, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, डन, सही है। अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अभी भी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स तो बाकी है ना। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं पीछे, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मौजूद हैं, वी आर नॉट गोना मूव ऑन, ठीक है, टू द नेक्स्ट शेल। हमें पहले इस शेल को पूरा करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हुए एस की वजह से, अब हम क्या करेंगे? हम अगली सब शेल पे जाएंगे जो कि पी है, राइट। सो एस सब शेल इज गोना गेट फिल्ड, पी सब शेल फिल हो गई, ठीक है। अब पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, अब हम थर्ड शेल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो जरूरत के हिसाब से हमारी सब शेल्स आती हैं, ठीक है। और ऑर्बिटल्स, अब ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। तो p के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास 3 ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है। इनके नाम क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, एक्स वाई जी, उसके साथ p लगा दो। सो 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz, ठीक है। सही है। आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं लाइव चैट भी खोल लेता हूं 1 सेकंड। Ali, if people have any questions, I'll transfer them to you. मैंने खोल के रखी भी है। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, सही है, ओके। I'll reshare 1 second. Okay, सही है। सो के शेल डन, एल शेल डन, लेट्स मूव ऑन टू द एम शेल, ठीक है। एम शेल में है 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करेंगे? ओके, सो एस सब शेल आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, पीछे कितने रह गए? पीछे रह गए 16 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे? नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब शेल, अगली सब शेल पे जाएंगे। अगली सब शेल में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स फुल हो गए, now we still have 10 electrons left, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। as long as हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, हम अगली सब शेल तक जाएंगे, ठीक है। तो अब हम जाएंगे 3D तक, और 3D जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेगी, ठीक है। हमने इसकी ऑर्बिटल्स को, p की ऑर्बिटल्स को पहले ही डिस्कस किया था, ठीक है। सिर्फ फर्क इतना आएगा कि क्योंकि शेल चेंज हो रही है, ये थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल के लिए हम लोग बोलेंगे 3px, 3py, 3pz। अगर सेकंड शेल होती तो
उसके लिए 2px 2py 2pz, ठीक है। इसी तरह अब देखो d की जो ऑर्बिटल्स है ना वो काफी दफा आती हैं, उनकी वेटेज थोड़ी हाई होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। देयर गोना आस्क यू, वो आपसे पूछेंगे कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स के क्या नाम है, ठीक है, और इनके आपको शेप्स भी देखने पड़ेंगे बुक में से। बट अगर आपको इनकी कॉम्बिनेशन क्योंकि नाम वो पूछेंगे आपसे, ठीक है, ये दो नाम स्पेशली अक्सर आ जाते हैं, स्पेशली इन द चैप्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। सो अब इनके नाम कैसे याद करने, बहुत ईजी है। एक्स वाई जी ले लो, ठीक है, इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना दो, ठीक है, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना दो। तो क्या कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, ये 3 कॉम्बिनेशंस बन गई, ये हमारी 3 ऑर्बिटल्स हो गई। और फिर बाकी दो जो है ना उनको थोड़ा सा रोट लर्न कर लेना। सो 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3d z स्क्वायर, ठीक है। सो दीज ऑर्बिटल्स, इनके नाम याद करना जरूरी है, इनको प्लीज थोड़ा फोकस करके कर लेना। एंड देन वी हैव द लास्ट शेल, जिसके अंदर ऑब्वियसली हम लोग इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अब, बिकॉज हमने ऑलरेडी 3 शेल्स को अच्छे खासी डिटेल में कर लिया है, ठीक है। किसी भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। सो शेल्स आई होप समझ में आ गई हूँ, सब शेल्स के बारे में आई होप समझ में आ गया, और ऑर्बिटल्स के बारे में समझ में आ गया, और हर लेवल ऑफ ब्रेकडाउन आई होप समझ में आ गया, ठीक है। क्वांटम नंबर्स, अब ये ही मेरा थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे आज तुम लोगों को क्लैरिफाई करना था। उससे पहले थोड़ी सी मुझे इंट्रोडक्शन देनी थी, बिकॉज यहाँ पे देयर आर पीपल हु हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं यार। अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टूल, राइट, अलग अलग टूल्स होते हैं हमारे पास टू हैंडल डिफरेंट जॉब्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक रेंच है तो आप उससे अपनी गाड़ी को सही कर सकते हो। मैकेनिक्स के इतने सारे टूल्स होते हैं आपकी गाड़ियों को सही करने के लिए। इसी तरह क्वांटम नंबर्स आर जस्ट टूल्स। क्वांटम नंबर्स एक इस तरह की चीज है जो आप यूज करोगे फॉर फाइंडिंग आउट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर एटम, ठीक है। अब क्वांटम नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स होंगे। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर्स होते क्या, क्वांटम नंबर्स आर डिफरेंट टूल्स बाय विच हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी ऑफ शेल को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग एनर्जी ऑफ सबशेल को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने 4 चीजें लिस्ट की। मैंने कहा एनर्जी ऑफ शेल, मैंने कहा एनर्जी ऑफ सबशेल, मैंने कहा ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 चीजें मैंने लिस्ट की है। आपकी बुक में थोड़ी सी और चीजें भी हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं, व्हिच आई विल शो यू अलग से, लेकिन फिलहाल इसको समझो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं। इन चारों चीजें के लिए 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे वो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये जो क्वांटम नंबर है ये हम लोग शेल्स के लिए यूज करते हैं। फिर सेकंड पे आता है एजम्थियल क्वांटम नंबर विच इज यूज फॉर सब शेल्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज किया जाता है, और स्पिन क्वांटम नंबर उनकी ओरिएंटेशन के लिए यूज किया जाता है। अब मूवमेंट और ओरिएंटेशन वाला जो पार्ट है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, आई विल एक्सप्लेन दैट। लेकिन पहले एजम्थियल और प्रिंसिपल को समझो, ठीक है। शेल्स और सब शेल्स, ठीक है, इनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे हमारे। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर तुम लोगों को KLMN 1 2 3 4 वाली बात समझ आ गई ना, दिस विल बी नथिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। इसमें कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, बस फर्क ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे विद n, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल, ठीक है, दिस गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल। दूसरी चीज जो आप लोग अपनी बुक्स में देखोगे रिटन, दैट विल बी शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो वो मैं आई विल गेट इनटू दैट लेटर ऑन, लेकिन दिस गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल। अब इसकी वैल्यूज क्या होंगी, इसकी वैल्यूज हो सकती हैं 1 2 3 या 4, और हमने उनको लर्न कर लिया है ऑलरेडी किस तरह से एसोसिएट करना है। जो पहली शेल है वो कौन है, K, सेकंड शेल इज L, थर्ड शेल इज M, फोर्थ शेल इज N, सही है। सो वी ऑलरेडी लर्न कि हमने इनको इस तरह से एसोसिएट करना है 1 2 3 4 KLMN, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हारा ऑफ बॉस प्रिंसिपल कनेक्टेड होगा और इससे तुम्हारा n+L रूल कनेक्टेड होगा, ठीक है। द हायर द वैल्यू ऑफ n, द ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ द शेल, ठीक है। मतलब ये कि अगर हमारे n की वैल्यू मतलब शेल की वैल्यू, अगर हमारी पहली शेल है मतलब K शेल है, उसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी, और जो हमारी फोर्थ शेल है, अगर हम इन चारों में से कंपेयर करें, हमारी जो फोर्थ शेल है इन अमंग दीज फोर,
उसकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी। तो जैसे जैसे आपका एन का नंबर बढ़ता जाएगा, आपका 1 2 3 4 5 6 7 आपका नंबर बढ़ता रहेगा, आपकी एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो जितनी वैल्यू ऑफ एन आपकी हायर होगी उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, सही है। सो एन 1 लोएस्ट एनर्जी, और अगर हम इन चारों में से एन 4 की बात करें तो वो हाईएस्ट एनर्जी पे होगा, मतलब एन शेल। अगर मैं फिफ्थ शेल को ले आता फिर वो हाईएस्ट एनर्जी पे होता, अगर सिक्स शेल को ले आता वो हाईएस्ट एनर्जी पे होता। सो जितनी हाई मेरी वैल्यू ऑफ एन होगी उतनी हाई मेरी एनर्जी होगी शेल की। ठीक है, अगेन शेल की एनर्जी की बात कर रहा हूँ, सही, ये शेल से रिलेटेड है। अच्छा, अब तुम लोगों को अगर ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, यू कैन लर्न देम एज वेल। ठीक है, आ जाते हैं कभी कभार, एक दो सवाल आ जाते हैं इनके ऊपर। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, दिस कैन बी फाउंड आउट यूजिंग द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर, सही है। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी फाउंड आउट यूजिंग द फॉर्मूला n स्क्वायर। ठीक है, सो अगर आपको लोगों को क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यू कैन यूज दिस। वैसे इट्स नॉट टू हार्ड, अगर आपको नहीं याद करने फॉर्मूलाज, दैट्स अप टू यू, बट इट्स क्वाइट इजी टू डिटरमिन इट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 2 8 18 32। तो या तो आप इनको याद कर सकते हो या आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो वो भी अगेन आप या तो याद कर सकते हो, पहली शेल में 1 ऑर्बिटल हो जाएगी, सेकंड शेल में 4 आ जाएंगी, एस की 1 3 पी की, सही है। वरना फिर आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। एंड डिफरेंट शेल्स के लिए देयर इज डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर अपनी बात खत्म कर ली। लेट्स मूव ऑन टू एजम्पथियल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब एजम्पथियल क्वांटम नंबर जो होता है ना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, सही है, स्मॉल एल। ठीक है, एजम्पथियल क्वांटम नंबर में हमें क्या पता चलता है फ्रॉम एन एजम्पथियल क्वांटम नंबर? वी गेट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ सब शेल्स। ठीक है, ये और भी एक दो चीजें बताते हैं व्हिच आई विल गेट इनटू लेटर, बट फिलहाल इसको समझो। इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ सब शेल्स, हमें सब शेल की एनर्जी का पता चल जाएगा। और इसका भी जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत सिमिलर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। जैसे जैसे नंबर बढ़ता रहेगा उतने वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती रहेगी। दैट्स ऑल, यही हमारा कोर कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, वैल्यूज जो होंगी वो होंगी 0 1 2 3। अब याद है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 से, यहाँ पे जो हम स्टार्ट लेंगे वो लेंगे 0 1 2 3 से। ठीक है, मतलब s जो है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो अगर हम l पूछें फॉर s तो वो क्या होगा? 0। अगर हम l पूछें फॉर p तो वो क्या होगा? 1। सही है, d 2। तो ये एक नंबर पीछे से स्टार्ट होता है। ठीक है, l की जो वैल्यू है वो समझ लो n-1 हो गई। सही है, सो ये एक नंबर पीछे से स्टार्ट होता है। तो s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, f की वैल्यू 3। अगेन सेम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई, सेम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, बस ये याद रखना है कि एक नंबर पहले से स्टार्ट हो जाता है। सही है, l इक्वल टू 0, एनर्जी लीस्ट, s सब शेल की एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारी एनर्जी भी बढ़ती रहेगी, हाईएस्ट एनर्जी होती रहेगी। ठीक है, सो इसके भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, दीज कैन ऑल्सो कम, ये भी अक्सर आ चुके हैं पास्ट पेपर्स के अंदर। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है। सो 2 इंटू 2l+1, ये एक फॉर्मूला है। एंड देन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैं लिख लेता हूँ बल्कि, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल, इसका फॉर्मूला क्या है? 2l+1। ठीक है, सो अगेन यू गाइस कैन यूज दीज फॉर्मूलाज, अगर आपको यूज करने हैं आप कर लो, वैसे याद रखना भी आसान है, बट कभी कभार ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं इन दी एमडीकैट, सो दे आर हेल्पफुल। ठीक है, नाउ अब ये मैंने दोनों बातें जो बताई है ना, इनका पर्पस ये था कि आई वांटेड टू गेट इनटू ऑफ बॉस प्रिंसिपल। ठीक है, बिफोर आई गेट इनटू ऑफ बॉस प्रिंसिपल, अगेन एज आई सेड, मुझे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट बनाना है, मुझे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इन केमिस्ट्री। ठीक है, और ये पूरी केमिस्ट्री में आएगा, चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट होता है स्टेबिलिटी का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होगा स्टेबिलिटी का। दुनिया में ना हर चीज को स्टेबल होना है, सही, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट्स टू बी स्टेबल। एंड यूल सी दैट अगर आप एक ग्रुप 1 के किसी भी एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया, अगर आप सोडियम के किसी भी छोटा सा भी टुकड़ा ले लो, अगर आप उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो क्या होगा? इमीडिएटली वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, क्यों रिएक्ट करेगा? वो किसी ना किसी तरह चाहता है कि वो स्टेबिलिटी अटेन कर ले। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करे या लूज करे या गेन करे या कुछ करे ताकि उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक
हाइड्रोजन जो है वो अकेला क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, वो H2 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस तरह से उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, राइट, इस तरह से उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, वो स्टेबल हो जाता है। व्हाई डज Cl2 एग्जिस्ट लाइक दिस, व्हाई डज Cl2 नॉट एग्जिस्ट इन Cl फॉर्म, अकेला क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, एक उसके साथ क्यों एग्जिस्ट करता है, दो एक साथ क्यों एग्जिस्ट करते हैं, अकेला क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्यों, स्टेबिलिटी उसकी इस तरह से ही बनती है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बनेगी, ठीक है। सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट स्टेबिलिटी, दैट इज व्हाई हम लोग कहते हैं कि जब हम ग्रुप 8 की बात करते हैं ना, नोबल गैसेस की, हम लोग उनको नोबल गैसेस बोलते क्यों हैं, क्योंकि वो इनर्ट होते हैं, राइट, उनके अंदर नोबल का मतलब क्या, मतलब अकड़ है उनके अंदर, वो रिएक्ट नहीं करते किसी से, राइट, रिएक्ट क्यों नहीं करते, उनको जरूरत ही नहीं है रिएक्ट करने की, उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। अगर किसी भी चीज के आउटर मोस्ट शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो वो स्टेबल है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये इनर्ट होते हैं, इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव। तो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स अनरिएक्टिव हैं, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल है, हर एलिमेंट इनकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये केमिस्ट्री में आपको हर जगह मिलेगा, और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ऑफबॉ एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो हमेशा पहले उधर जाएंगे, वो पहले उस ऑर्बिटल को फिल करेंगे, ऑर्बिटल की हमने बात की हुई है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जहां पे एनर्जी लेवल कम है, सही है, इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज फिल फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल वेयर वी हैव अ लोअर एनर्जी लेवल, सही है। अब इलेक्ट्रॉन्स ये क्यों कर रहे हैं, मैंने स्टेबिलिटी की बात क्यों की इससे पहले, बिकॉज आपको बताने के लिए कि जहां पे ज्यादा एनर्जी होगी, देखो जिस ऑर्बिटल में ज्यादा एनर्जी होगी, ऑटोमेटिकली वहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, सही है। एक आपको रिलेशन अगर मैं बताऊं ना, तो मे बी इट विल मेक इट थिंग्स अ बिट मोर क्लियरर फॉर यू। एनर्जी इज का जो रिलेशन है स्टेबिलिटी के साथ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में पहले जाते हैं, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी को फेवर करना होता है, हर चीज दुनिया में स्टेबिलिटी फेवर करती है, इलेक्ट्रॉन्स आर नो एक्सेप्शन टू दैट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जहां पे उनको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, और ज्यादा स्टेबिलिटी उनको हमेशा उसी ऑर्बिटल में मिलेगी जहां पे एनर्जी कम है, ठीक है। सो ये ऑफबॉ का प्रिंसिपल था, और यही चीज N+L रूल में भी अप्लाई होती है। अब इनके जो एग्जैक्ट रूल्स हैं वो आपकी बुक में हेडिंग के नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको उनको वहां से याद करना होगा, बट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप तुम लोगों को समझा रहा हूँ। So if two different orbitals have the same energy, then electrons fill first in the orbital where value of n is less. इसमें हम लोग बाद में आते हैं, पहले तो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं उनको सॉल्व करूंगा। देखो, अब मैं लिखता हूँ 1s। 1s का पहली बात समझो, 1s का मतलब क्या है। 1s का मतलब है मैं कौन सी ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरी फर्स्ट शेल के अंदर है, और फर्स्ट शेल की फर्स्ट सब शेल के अंदर है, राइट। अब मैंने तुम लोगों को एन और एल की वैल्यूज बताई है ना, राइट, बहुत आसान है। अब इसकी एन और एल की वैल्यूज लिखो। एन की वैल्यू क्या होगी, 1, फर्स्ट शेल में है ना, तो एन की वैल्यू हो गई 1। एल की वैल्यू क्या होगी, ज़म्थियल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0, राइट, बिकॉज एस फर्स्ट सब शेल है, और एजम्थियल क्वांटम नंबर स्टार्ट ही 0 से होता है। अब जब मैं n प्लस एल करूंगा ना, जब मैं n+l रूल बोलते हैं इसको, जब मैं n+l रूल यूज करूंगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, व्हाट इज माय एनर्जी लेवल फॉर दैट ऑर्बिटल, जब मैं n+l यूज करूंगा। सो n हो गया 1, l हो गया 0, इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। 1s हो गया और इसका आंसर आ गया 1। सो इसकी एनर्जी लेवल क्या हुआ, इसका एनर्जी लेवल हो गया 1, ठीक है, बिकॉज मुझे n की वैल्यू पता थी, मुझे l की वैल्यू पता थी, मैंने इसका एनर्जी लेवल फाइंड आउट कर लिया। n+l रूल जो होता है वो एनर्जी लेवल को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं इसी ऑर्बिटल को कंपेयर करूं विद द ऑर्बिटल ऑफ 1p, 1p, तो मेरा एनर्जी लेवल 1p के लिए क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 1, l इज इक्वल्स टू 1, ऐसा ही है। जब मैं n+l लगाऊंगा, सो आई एम गोइंग टू गेट 1 + 1, और ये बन जाएगा 2। अब मुझे बताओ एनर्जी लेवल किसका ज्यादा हाई है, लेफ्ट वाले का या राइट वाले का, ज्यादा हाई एनर्जी लेवल इज व्हाट, विद 1p, ठीक है, ज्यादा हाई एनर्जी लेवल 1p का, लोअर एनर्जी लेवल 1s का है। तो इलेक्ट्रॉन्स किसको फेवर करेंगे पहले,
1s को, उसका एनर्जी लेवल छोटा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स फेवर करेंगे कि वो पहले 1s में चले जाएं। अगर 1s फुल है फिर उनके पास ऑप्शन बचेगा 1p का। और इसी तरह हम लोग बहुत सारे कंपैरिजंस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपैरिजंस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से एनर्जी लेवल्स में क्या जाएगा, ठीक है। सो आई हैव रिटन डाउन अ फ्यू एग्जांपल्स ओवर हियर, इनको जरा और से देख लो। तो ये देखो 1s और 1s और 2s, ठीक है, 1s और 2s, 1s और 2s को मैं बाकायदा खुद सॉल्व कर लेता हूँ, 1s एंड 2s। सो 1s 2s, 1s का क्या मतलब हुआ 1, n इज इक्वल टू 1, ठीक है, और l का क्या मतलब हुआ 0, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, n प्लस l क्या होगा यहाँ पे 1, n प्लस l यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे 2 प्लस 0 होगा, यहाँ पे 1 प्लस 0 होगा। तो एनर्जी लेवल किसका ज्यादा हाई है 2s का। सो इलेक्ट्रॉन्स पहले किसको फिल करेंगे 1s को। सो इसी तरह आई हैव मेड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ओवर हियर, ठीक है, तो देख लो 2s और 2p का एग्जांपल है यहाँ पे। सो n इज इक्वल टू 2, ठीक है, s के क्या हुआ l इज इक्वल टू 0, n प्लस l क्या आया 2 आया, 2p के अंदर n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, n प्लस l क्या आया 3 आया। सो पहले किसको इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 2s को फिल करेंगे, सही है। व्हेन वी आर गोना टॉक अबाउट 2p एंड 3s, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स पहले किसको फिल करेंगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 आया, यहाँ पे l इज इक्वल टू 1 आया, यहाँ पे अगर आप n प्लस l निकालो तो वो 3 आ गया। अगर आप 3s की बात करो तो n इज इक्वल टू 3 आया, l इज इक्वल टू 0 आया, n प्लस l अगर निकालोगे वो भी 3 आया। नाउ व्हाट डू वी डू, अब क्या करें, अब तो दोनों एनर्जी लेवल सेम आ रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स किसको पहले फिल करेंगे, तो द आंसर टू दैट इज इन द रूल, ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट थी रूल की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स, अगर दो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जिनका सेम एनर्जी लेवल है, अब यहाँ पे देखो दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं लेकिन उनका एनर्जी लेवल सेम आ रहा है, राइट, जिनका सेम एनर्जी लेवल आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले किसको फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू फिल फर्स्ट इन द ऑर्बिटल वेयर वैल्यू ऑफ n इज लेसर, जहां पे n की वैल्यू कम है। अब अगर हम इन दोनों को देखें 2p और 3s को, इन दोनों में वैल्यू ऑफ n कहां पे कम है 2p के अंदर, राइट, दोनों की n प्लस एल वैल्यू तो सेम है, एनर्जी वैल्यू तो सेम है, लेकिन n की वैल्यू कम कहां पे है 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो किसकी कम है 2p की, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले किसको फेवर करेंगे 2p को। तो ये तुम्हारा ऑफ बॉर्स प्रिंसिपल है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहले जाएंगे, और अगर एनर्जी लेवल सेम आए तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे एक दो और भी एग्जांपल्स हैं, बट द मेन एग्जांपल जो जिसके अंदर मुझे जाना है ना वो ये है 4s एंड 3d। अब अगर हम लोग 4s और 3d को देखें ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आती है 4, राइट, फोर्थ शेल में ना, और l की वैल्यू क्या आएगी 0, n की वैल्यू इधर क्या आएगी 3, और l की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू क्या होती है, याद करो, s की वैल्यू 0 थी, t की वैल्यू 1 थी, d की वैल्यू 2 है, सो l की वैल्यू क्या आ गई 2, n प्लस l की वैल्यू हो गई 5, n प्लस l की वैल्यू इधर क्या हो गई 4। So the main place where people get confused in the off-boss principle is here, क्योंकि यार यहाँ पे ना 4s है और 4s जो है वो हमें लगता है कि बाहर की तरफ है, राइट, वो बाहर की तरफ है, एंड जो कि फैक्ट है, 4 अगर फोर्थ शेल में कोई चीज है तो वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर है, सही है। तो लोगों को ये लगता है कि क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा बड़ा है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा बड़ा है, तो ये पहले फिल नहीं हो सकता, ये बाद में फिल होगा। लेकिन जब हम n प्लस एल रूल लगाते हैं तो हमें दिखता ये है कि इसकी एनर्जी वैल्यू इज लेसर देन द एनर्जी वैल्यू ऑफ 3d, इसकी एनर्जी वैल्यू 3d से कम आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें पहले फिल होंगे, ठीक है। सो कंफ्यूजन यहीं पे आती है सबकी कि यार 4s और 3d में पहले कौन फिल होगा, और ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर जान के। सो 4s और 3d में पहले 4s ही फिल होगा, बिकॉज वहां पे n प्लस एल वैल्यू छोटी है, इवन दो वो वैलेंस शेल है, इवन दो वो ज्यादा बाहर की तरफ है, पहले वो फिल होगा और उसके बाद 3d फिल होगा, ठीक है, राइट। ये जो भी नोट्स वगैरह हैं मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, यू डोंट नीड टू राइट देम डाउन और एनीथिंग, ठीक है, अगर किसी को चाहिए होंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप पे। एनीवेज, तो अब अगर हम एक ऑर्डर ऑफ फिलिंग देखें, अगर हम इसको देखें कि किस तरह से भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और हमने ये जो सारे एग्जाम्पल्स किए हैं इनसे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे,
इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे 1s में, 1s के बाद जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स 2s में, ठीक है, 2s के बाद जाएंगे 2p में और फिर 3s में, 3p में, 4s में, 4s में देखो जा रहे हैं 3p से कहाँ जा रहे हैं, अगले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में, 3d में नहीं जा रहे, 3d में 4s के बाद जाएंगे। तो अगर हम एक एस्टैब्लिश करना चाहें ना एक ऑर्डर, तो हमारा ऑर्डर ये बन जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। तो हमारा ऑर्बिटल फिलिंग का ऑर्डर क्या बन गया, ये बन गया, और 4s जो है वो 3d से पहले आ रहा है, ठीक है। Hasnain, can I keep on going or do you want to take over? I think that's a good gist. Ali, you've explained it quite well. Obviously, we're going to have a lecture on this again. Can you hear me, Yeah, Ali? Am I audible? yeah. Yeah. So we're gonna have a proper lecture on this. So for everyone who's watching and who's really enjoying like me, जब इसका proper atomic structure का lecture होगा, so then make sure to join that because उसमें Ali will go into more details. He'll use more diagrams and साथ में लेकिन he'll make sure कि he gives you mnemonics and short tricks to help you remember that. I'm gonna start carrying on regarding this improver course because that's the real gist. I have a lot of questions के बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई ये सिर्फ क्या रिपीटर के लिए है, इम्प्रूवर के लिए है या फिर उन बच्चों के लिए भी है who are also gonna be, for example, appearing for the MDCAT the first time. So I'm gonna start on that. I'm gonna share my screen. Ali बता देना if you can please see it. ठीक है? All right. अच्छा. Can you see my screen? Yep. Awesome. ठीक है. So let's get started. तो बेसिकली जो हमारा ये MDCAT improver कोर्स है, इसके बारे में I'm going to give a brief detail for the next 5 minutes, 5 to 10 minutes, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हम ये कोर्स क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं और इसके पीछे रीज़न क्या है। सो बेसिकली जो ये MDCAT प्रिपरेशन कोर्स है, इसके मैं आपको थोड़े से फीचर्स बता चलूँ। तो ये जो कोर्स है ना, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1st of October, ठीक है ना, and it will go all the way to July. So you know this is where the MDCAT is scheduled to occur next year. तो for example usually September में होता है, तो हम जुलाई के एंड में जाकर ना आपको पूरा का पूरा कोर्स इस तरह पढ़ा देंगे कि आप लोग बिल्कुल रेडी हो टू एक्चुअली गो एंड गिव द MDCAT. इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा। सो फर्स्टली जो अभी है, जिस तरह मैंने बताया अभी, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव फॉर एग्जांपल स्टफ हैपनिंग इन द वीक, आपकी फॉर एग्जांपल क्लासेस होती हैं, एकेडमीज होती हैं। तो क्या होगा कि हमारा जो ये कोर्स है इट विल बी बेसिकली हैपनिंग ऑन द वीकेंड्स। तो आपको सैटरडे को 3 घंटे देने पड़ेंगे और फिर संडे को 3 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, आपको हम पढ़ाएंगे इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग और साथ में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। तो हम हर आपको हफ्ते 4 क्लास पढ़ाएंगे और मैं आपको स्केड्यूल दिखाता हूँ अभी, आपको इस तरह पता चलेगा कि किस तरह हमने क्लासेस को प्लेस किया हुआ है। हर जो क्लास है वो तकरीबन 60 मिनट की है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल आपको 3 घंटे देने पर डे, तो बेसिकली हम लोग क्लास में आपको जो कंटेंट है वो पढ़ाएंगे इन 1 आवर और 30 मिनट्स आपको मिलेंगे टू ओपन योर माइक, टू ओपन योर कैमरा, टू सेंड अ पिक्चर इन द व्हाट्सएप ग्रुप। और हमारे जो टीचर है वो अपने जो टैबलेट पे, लैपटॉप पे आपको पूरा पढ़ाएंगे कि किस तरह वो सवाल का आंसर देना है, ताकि आपको पूरा आइडिया मिले कि किस तरह फॉर एग्जांपल हमें सवाल अटेम्प्ट करने और प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ में कोई अगर आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से एकेडमी का या कॉलेज का सवाल कोई मुश्किल लग रहा है, यू कैन आल्सो गो एंड अटेम्प्ट दैट। और इसके साथ आपको मिलेगी 24/7 मेंटरशिप। तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पे हमारे सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, बच्चे होंगे अवेलेबल जिन्हें कीमू का टेस्ट दिया है, डाउ का टेस्ट दिया है, दे गॉटन इन एज वेल, और फिर वो आपको पूरी मेंटरशिप और गाइडेंस कर रहे होंगे। इसके साथ में एक अगर आप चाहें, अगर तो आप अपने पेरेंट का हमें व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं, तो हम उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। इसके ज़रिए आपके पेरेंट्स भी अप टू डेट रहेंगे कि किस तरह हमारा बच्चा पढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। वी कैन ऑल्सो हैव अ पेरेंट टीचर मीटिंग, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो उस पेरेंट को, जिससे उनको टीचर से बात करनी हो। जिस तरह मैंने बताया कि हम लिमिटेड स्टूडेंट्स दे रहे हैं। अच्छा, अब किसको किसको ले रहे हैं, देखें, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो उन बच्चों को दी जाएगी जो इम्प्रूवर्स हैं, बट हम लोग उन बच्चों को भी ले रहे हैं जो फॉर एग्जाम्पल अपना MDCAT पहली दफ़ा दे रहे होंगे। रीज़न क्या है कि हम आपको A to Z पढ़ा रहे होंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि इस बच्चे ने पहले से 1 साल पढ़ा हुआ है तो हम इसको कोई कॉन्सेप्ट मिस करवा दें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आपको हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट इस तरह पढ़ाएंगे टू इंश्योर कि हाँ भी अगर आपने पहले वो चैप्टर कभी ज़िंदगी में नहीं भी देखा, तो अभी आप इस तरह पढ़ के जाएंगे कि आपने पूरा घुल के पी लिया होगा। अब इसकी वजह से बिकॉज वी हैव लिमिटेड टीचर्स, लिमिटेड टाइम रिस्ट्रेंट्स, तो हम ना बच्चों को लिमिटेड
क्वांटिटी में लेंगे। तो हमारा जो एक कोहॉर्ट होगा उसमें तकरीबन 60 से 80 बच्चे का हमने एक रेंज रखा है, हम 80 बच्चों के ऊपर नहीं जाएंगे कुछ भी हो जाए। सो यू व्हाट यू हैव टू डू इज दैट बेसिकली हैव टू मेक श्योर दैट यू साइन अप फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपको इसकी जगह मिल जाए। आगे जाके ऑप्शंस हो ना हो वो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। स्केड्यूल की अगर हम बात करें तो हम स्केड्यूल दिखाता हूँ आपको मैं। तो स्केड्यूल अगर है ना तो ये हम देखते हैं, तो यहाँ पे दिस इज द स्केड्यूल। अब यहाँ से जैसा मैंने बताया कि 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होगी। अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग आपको संडे को पढ़ाएंगे फिजिक्स और इंग्लिश, ठीक है ना, और लेट्स से अगले ही हम हफ्ते को पढ़ा देंगे सैटरडे को केमिस्ट्री, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा देंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्लासेस फॉर एग्जाम्पल एक दिन में 2 दफा होंगी, कभी कभी सिर्फ एक क्लास हो रही। हम इस तरह इंश्योर कर रहे हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मोटा चैप्टर जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बड़ा चैप्टर है, तो वो हम आपको बोले हम सिर्फ 1 घंटे में पढ़ा देंगे, मजा नहीं आएगा। तो हम चाहेंगे कि बच्चा थोड़ा आराम से पढ़े, कोई उसको ब्रेक की जरूरत ना पड़े, वो आराम से फोकस करके पढ़ सके, और अगले हफ्ते के लिए हम लोग पे ज्यादा कंसेक्यूटिव क्लासेस कर देंगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है लेट्स से हमारे पास है 21 अक्टूबर, तो यहाँ पे हमारे पास बायोलॉजी का एंजाइम्स है। क्यों? बिकॉज एंजाइम्स एक बड़ा चैप्टर है। तो इस तरह हमने आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में लेटर एंड सिंबल भी पढ़ा रहे हैं। तो पूरा आपको एक जिस्ट पढ़ाएंगे, और साथ में जैसे मैंने बताया 1 घंटे की क्लास होगी, और उसके बाद फिर आधे घंटे की क्वेश्चनिंग होगी। जैसे यहाँ पे हमने 1 घंटे में आपको पढ़ाया फिजिक्स का फोर्स एंड मोशन, आपको फिर आधा घंटा देंगे कि भाई आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो यहाँ पे, या फिर हम लोग आपको खुद प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास आएगी इंग्लिश की क्लास, और इंग्लिश में क्या होगा, हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रो टू बेसिक्स एंड वोकैबुलरी। इसमें भी अगेन 1 घंटे की पूरी क्लास होगी, और फिर आधे घंटा डिस्कशन होगा। तो ये अगर हमारा 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, तो ये चलते जा रहा है, बीच में एक विंटर ब्रेक देंगे आपको, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और हर सैटरडे संडे को क्लास होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया तो कुछ हम लोग एडजस्ट करेंगे, बट क्लास स्किप नहीं होगी। और एंड में जाके ना ये हमारा एंड हो रहा है इन जुलाई। जुलाई में एंड क्यों हो रहा है? बिकॉज हमें अभी तक एक्सपेक्टेड डेट मिल गई है पीएमडीसी की तरफ से कि हमारा जो एमडी कैट है वो समवेयर बिटवीन द एंड ऑफ जुलाई और 1 सितंबर के वीक में होगा, सॉरी 1 अगस्त में, या फिर हमारे जुलाई के लास्ट वीक्स में होगा। तो इससे हम चाह रहे हैं कि उस वक्त हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कर दें, और फिर ये लास्ट 3 दिनों में आपको हम मॉक टेस्ट करवाएंगे। मॉक टेस्ट क्या होगा कि भाई आप लोग आओगे, हम आपको ऑनलाइन एक टेस्ट देंगे, आप पूरा अटेम्प्ट करोगे इन द एग्जाम सेटिंग, फिर हमारा जो टीचर है बैठ के पूरा उसको समझाएगा, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं कि अभी हमने स्केड्यूल डिस्कस कर लिया है, या मैं स्केड्यूल जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पर हम आपको शेयर कर देंगे, और साथ में हमारे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे टीचर्स पे। भाई टीचर्स पे हमने बनाए हैं एक्सपर्ट्स हमारे पास। एक है जिससे आपने देखा अली, जो पढ़ाए थे हमें केमिस्ट्री, ठीक है। इसके साथ में है मोहित जुल्फिकार, ये हम पढ़ाएंगे हमें फिजिक्स, ठीक है ना। इसके साथ में हमारे पास है मरियम शाबी, और इनका एमडी कैट स्कोर है 180। Now all these kids are very smart माशाल्लाह, and they've scored very well in the MDCAT, और साथ साथ they're very good in concepts। इसके साथ they have a lot of experience in teaching as well। The best part यही है कि these students have been teaching in the past O level के, A level के, FSC के बच्चों को, जिसकी वजह से आपका फायदा ये होगा कि भाई आप इस तरह के कोहॉर्ट के टीचर के पास जा रहे होंगे जिन्हें पहले उन्हीं बच्चों को पढ़ाया हो जो आपके स्टेज से गुजरे हैं। आपके स्टेज से वो कुछ 2 साल पहले गुजरे, तो उनको पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आती होंगी। इसके साथ में जो हाया है वो पढ़ाएंगे इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। इनका नम्स का स्कोर है माशाल्लाह 87%। इनका यूट्यूब का अकाउंट भी है, एंड शी इज एन अमेजिंग टीचर। हमारे पास अभी ये कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रही है ऑन आवर यूट्यूब अकाउंट, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं ताकि किस तरह इनकी टीचिंग स्टाइल है, ठीक है। तो ये टीचर्स तो आपको 100% लेट डाउन नहीं करेंगे, साथ में मेंटरशिप देंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। सो यू गोना लव इट विद दिस कोर्स। इसके साथ आपको क्या मिलेगा? तो इस कोर्स में आपको मिलेंगे हमारे प्रीमेड के नोट्स। प्रीमेड के नोट्स क्या है भाई? हमने रियलाइज किया कि भाई देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो फॉर एग्जांपल डिफरेंट किताबों में डिफरेंट लिखे हुए हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर कहीं पे 4.18 लिखी होगी, कहीं पे फॉर एग्जांपल 4.20 लिखी होगी। तो हमने नोट्स बनाए कंसाइज, सिंथेटिक, जो बच्चा जाके सारे अटेम्प्ट कर सकता है और देख सकता है कि भाई कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है। मैं आपको नोट्स थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इसके साथ आपको मिलेंगी गाइड्स। गाइड्स क्या है कि भाई बच्चे को बताएंगे भाई ये वाला चैप्टर है वेव्स का, लेट्स से फिजिक्स का, तो उसको पहला जो फॉर एग्जांपल सब टॉपिक हो यहाँ से पढ़ना है, इसकी यूट्यूब वीडियो ये वाली अच्छी है, इसका फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट आप इस तरह बना सकते हो, इसके निमोनिक्स ये है, साथ में फिर अगला सब टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। तो पूरा हम आपको A to Z हर एक चैप्टर का पढ़ाते हैं। इसके साथ में हमारा जो एमडी कैट क्यू बैंक है जो 4000 रुपए का है, विच इज फॉर 50,000 क्वेश्चंस का एक्सेस अलॉन्ग विद देयर ऑप्शंस एंड देयर
रिस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशंस, वो सारा आपको मिलेगा विद रियल टाइम स्टैट्स, सेफ क्वेश्चन का फीचर, रिपोर्ट क्वेश्चन का फीचर और बहुत ज़्यादा चीज़ें। आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी बच्चे जो इस ग्रुप में अभी हैं वो सारे इंप्रूव तो उन्हें प्रीमेड यूज़ किया है। अगर समवन डज नॉट नो, मेक श्योर टू गो एंड चेक आउट premed.tk फॉर ऑल द फीचर्स जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और साथ आपको मिलेंगे डाउट सॉल्व के 500 कॉइन्स। वो क्या है, बेसिकली 500 कॉइन्स आपको मिलेंगे कि भाई कोई भी आपको सवाल कोई भी किताब में मिला, आप अपना फोन उठाओ, उसकी तस्वीर खींचो और हमारे एक्सपर्ट को भेजो। हमारा एक्सपर्ट उस पूरे सवाल को एक्सप्लेन कर देगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक वीडियो के तौर पे कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो मैं कह रहा था ये नोट्स, ठीक है। नोट्स आपको दिखाता हूँ, हमारे एक बायो की एग्जाम्पल है किंगडम प्लांटिंग, जो मुझे तो सबसे ही फजूल टॉपिक लगता था जिंदगी का। पर लेट्स से हमने किस तरह नोट्स बनाए हुए। लुक एट द नोट्स, देयर ब्यूटीफुल, देयर कलरफुल, आपको पूरा बेहतरीन करवा रहे हैं। देयर इज लाइक यू नो कि आपके फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, इसमें निमोनिक्स नजर आएंगे आपको। पूरा आपको फॉर एग्जांपल हम एक पढ़ा रहे हैं कि भाई क्या इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है जो हमारे फॉर एग्जांपल जैसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो, डायग्राम्स हमने ऐड किए हुए हैं फॉर एग्जांपल आपकी बुक से ऑनलाइन, जो आपको बेहतरीन याद करवा दें कि किस तरह हमें ये करना है। लेट्स गो आगे, हम और आगे जाते हैं। और क्या है इसके अंदर, लेट्स सी, ये अब ये देखिए ना जो अब ये क्या चीज़ है, दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे अगर कोई सवाल आया है तो हमने इस तरह के एक स्टार बॉक्स पे डाल दिया है, तो बच्चे ये तो मतलब रट के जाए, बिकॉज ये पक्का पक्का उसको टेस्ट होने वाला है, ठीक है। लेट्स गो आगे, लेट्स गो आगे। फॉर एग्जाम्पल सारे हमने देखे आपकी किताब से, हमने ये सारे डायग्राम्स डाले बिकॉज हमें पता है ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका दिल चाहे कि भाई मुझे किताब नहीं पढ़नी है, कोई मसला नहीं, आप क्या कर सकते हो, आप जाके प्रीमेड के सारे नोट्स कर सकते हो, ठीक है। लुक एट दिस निमोनिक्स, मलाइका's foot pains a lot, इस पे हमने पूरा मैनकैंटिया, फुनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड एंथरक्रोस पूरा पढ़ा दिया हमने। तो इस तरह अगर आपने मलाइका's foot pains a lot याद कर लिया, नाउ यू नो व्हाट अ ब्रायोफाइट इज, एज सिंपल एज दैट। अब ये अगर आप बैठकर खुद बनाते हैं, सोचते ये वो, कभी नहीं होता आपसे, आपने ये याद कर लिया, सिंपल। दिस इज आवर नोट्स फॉर किंगडम प्लांटेड। लेट्स शो यू फिजिक्स। अब फिजिक्स का वेव्स का जो चैप्टर है ना, इसमें आप देखिए कितना ब्यूटीफुल हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिससे आप पूरा मैकेनिकल मैटर और ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है उनको आप पढ़ सकते हो। पूरे हमने डायग्राम्स बनाए हैं, किस तरह वाइब्रेशन होती है, क्या हमारी वेवलेंथ होती है, क्या इसका पीरियड मूवमेंट होती है। इसके साथ अगर हम आगे जाएं तो और फॉर एग्जांपल हमारी शॉक वेव्स, स्टेशनरी वेव्स। लुक एट दीस डायग्राम्स, ऑल दीस डायग्राम्स बाय द वे आर मेड बाय इन हैंड, हम इन हाउस बनाते हैं डायग्राम्स, हमारे डिजाइन की पूरी टीम है। सो ट्रस्ट मी, दीज डायग्राम्स आपके जहन में ना इम्प्रिंट हो जाएंगे। जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड यू विल रियलाइज कि दीज डायग्राम्स, दीज नोट्स आर परफेक्ट, ठीक है। लेट्स गो आगे, अब हम बात करते हैं हमारे इसके आगे जाने की कि भाई और हम क्या ऑफर कर रहे हैं। अब हम आपको डिस्कस करते हैं कि भाई ये कोर्स कोई लाइक यू नो वेटेड है क्या, बच्चों ने यूज भी किया है। मैं आपको बताना चलूँ कि भाई ये बच्चों ने कोर्स लास्ट ईयर भी लिया था एंड दीज आर द रिव्यूज। मैं पढ़ने की जरूरत नहीं करूंगा, बट ट्रस्ट मी, जस्ट लुक एट देम, एवरीवन इज जस्ट सेइंग कि भाई इस कोर्स की वजह से दे हैव गॉटन इनटू देयर ड्रीम मेडिकल यूनिवर्सिटीज। जो बच्चे एकेडमी नहीं जा रहे थे वो फॉर एग्जांपल इस कोर्स के जरिए अपने पूरा एमडी कैट की तैयारी कर रहे थे, एंड दे ऑल से कि अगर ये कोर्स नहीं होता तो उनका अभी उस यूनिवर्सिटी में नहीं होता, अगर उनका अभी कोर्स नहीं होता तो उनका एमडी कैट स्कोर अच्छा नहीं आता। जस्ट लुक एट देम, दे ऑल सेइंग कि भाई अगर हम एकेडमी नहीं गए और हमने 3 से 4 हफ्ते पहले कुछ नहीं पढ़ा था, तो दिस कोर्स फिटेड माय नीड्स परफेक्टली। ये दावर जो है हमारे टीचर है, ये हमें और टॉपिक्स पढ़ाएंगे, तो इस तरह हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर करवाएंगे। फिर हम क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ये किसकी बात करें, जो हमारे क्यू बैंक का एक्सेस है। साथ में हमारा जो कोर्स है कि भाई बच्चा आ रहा था और ऐसा पढ़ के जा रहा था कि उसको पूरा एग्जाम आराम से क्लियर करने की आसानी हो गई थी। भाई क्या था भाई, एंड में जो हमारा फॉर एग्जाम्पल एक लेकिन बिल्कुल लास्ट में जो बच्चा कहते हैं ना कि भाई हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमें हेल्प कर दो, लास्ट 1 मंथ है, हमने उस वक्त पढ़ाया था बच्चों को और ऐसा पढ़ाया था कि उनको जिंदगी पे याद रहेगा। दिस आर रिव्यूज, वी आर नॉट सेइंग, हम अपनी तारीफ नहीं करना चाहते, दीज आर एक्चुअल किड्स हु सेड कि हाँ भी कोर्स अच्छा था, इट हेल्प्ड अस एंड दैट्स व्हाई वी एडेड दैट। और क्या मिलेगा भाई, एक तो हमने डिस्कस कर लिया पढ़ाई कि भाई पढ़ाई 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 होगी, डिस्कस करेंगे, मेंटरशिप होगी। क्या होगा भाई, बच्चे अब जो टीचर्स है ना, दे विल डिस्कस भाई किस तरह फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है, भाई किस तरह फॉर एग्जांपल आपको हर दिन फॉर एग्जांपल टाइम निकालना है पढ़ने के लिए, एक्टिविटीज करनी है, आपको साथ में फैमिली को टाइम देना है। हम डिस्कस करेंगे किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है। भाई पेपर अटेम्प्ट करने की स्किल होती है, मुझे पता है ऐसे बच्चे जो फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं पढ़ के जाते और 180 मार के आते हैं, और ऐसे भी बच्चे पता है जो पूरी किताब हिफ्ज करके जाते हैं और 140 मार के आते हैं, बिकॉज उनकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक सही नहीं है। तो यहाँ पे जो बच्चे बैठे बिकॉज किस तरह अच्छा स्कोर करना है। इसके साथ तीसरा है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट स्किल भाई किस तरह, फॉर एग्जांपल पेपर में आपका अगर इंग्लिश का सवाल आ गया, लॉजिकल रीजनिंग का सवाल आ गया जो आपको नहीं आता, आप किस तरह अपना टाइम सेव करोगे और इस पेपर को अटेम्प्ट करोगे।
ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब भाई इस कोर्स की प्राइस क्या है? मुझे पता है बहुत मैसेजेस आए हुए हैं, प्लीज कोर्स की प्राइस बताएं, कोर्स की प्राइस बताएं। भाई ये कोर्स की प्राइस है 45,000 रुपीज। अब बच्चे बोलेंगे सर 45,000 रुपीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आपको थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ। भाई हम ये कोर्स पढ़ा रहे हैं आपको 10 मंथ्स के लिए, ठीक है? तो अगर आप हिसाब लगाओ, दिस कोर्स बिकम्स ओनली 4500 रुपीज पर मंथ, ठीक है? 4500 रुपीज आप लिटरली खाने पे खर्च कर रहे हो, आप कितनी जगह खर्च कर रहे हो। आपको हम कितनी क्लासेस दे रहे हैं? आपको हम दे रहे हैं महीने की 16 क्लासेस, 16 क्लासेस फॉर जस्ट 4500। सही है ना? अब बच्चा बोलेगा मजा नहीं आया, चलिए फिर भी मजा नहीं आया। आपको क्या क्या मिल रहा है? प्रीमेड के एक्सक्लूसिव नोट्स हैं जो किसी बच्चे को नहीं मिलने वाले। प्रीमेड का एमडी कैट का क्यू बैंक है जो आपको 4000 का खरीदना ही खरीदना है। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल हो रहे हो, आपको फ्री में मिल रहा है। प्रीमियर की गाइड्स आपको कहीं व्हाट्सएप ग्रुप कहीं नहीं मिलने वाली, आपको हमारे सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स की एनरोलमेंट थ्रू आपको गाइड्स मिलेंगी। डाउट सॉल्व के कॉइन्स की आपको मैंने बात कर दी। इसके साथ में देयर इज डिफरेंट डील्स एज वेल, कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आप अर्ली साइन अप करते हो, आप बोलते हो कि भाई मैं फॉर एग्जांपल पूरे पैसे एक साथ देना चाहता हूँ, हमको पूरा 5000 का डिस्काउंट, 5000 का एक पूरा साथ में डिस्काउंट दे देंगे कि भाई आप आओ, आप एक साथ डाउन पेमेंट करो, आपको पूरा हमने 5000 का डिस्काउंट दे दिया। बट अगर आप देखा जाए 4500 रुपीज अगर बच्चा दे रहा है और उसको हम पूरा हाथ पकड़ के ए टू जी पढ़ा रहे हैं कि किस तरह, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस किस तरह करने हैं, आपको हम मॉक टेस्ट देंगे, आपको हम टेस्ट में फॉर एग्जांपल पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे लेट्स से अली ने आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया होता पूरा का पूरा, तो फिर आपको एंड में वो बोलता है कि भाई ये सारे सवाल जाके प्रैक्टिस करो। 4500 रुपीज में आपको कोई ये कुछ नहीं दे रहा, और हम आपको गारंटी तो दे नहीं सकते, बट मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिव्यूज बच्चों के आए, जिन बच्चों ने हमारे प्रीमेट के सवाल किए, उन सब ने ये वादा और प्रॉमिस किया है कि अगर फॉर एग्जांपल वो प्रीमेट को रिलीजियसली यूज करते और वो क्रैश कोर्स को इस तरह फॉर एग्जांपल सही से निचोड़ के यूज करते, तो आज वो बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, तो वो प्रीमेट की वजह से है। तो दिस इज व्हाट आई वांट to all of you to understand कि this course is taught by teachers who have just cleared the MCAT with stellar marks, with amazing marks. So you have to make sure to use this platform to the fullest. ठीक है ना? तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टेड है तो मैं यही ग्रुप की लिंक आपको भेज दूंगा ऑन द ग्रुप एज वेल, हमारी सोशल मीडिया पे जाएगी। इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज मैसेज अस ऑन सोशल मीडिया, और हम आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। ठीक है ना? दिस कोर्स इज एन अमेजिंग कोर्स दैट यू शुड नॉट मिस आउट ऑन। बहुत लिमिटेड स्पॉट्स हैं, प्लीज साइन अप एज सून एज पॉसिबल टू मेक श्योर यू गेट एक्सेस। इफ एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज सेंड देम इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कमेंटिंग करते रहिएगा, जो भी सवाल आप कह रहे हैं प्लीज आप कमेंट करते रहे, हम उनके जवाब देते रहेंगे। एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, हमारे सोशल मीडिया पे हमें मैसेज करें, हम आपको ग्रुप का एक्सेस भी दे देंगे, और साथ में कोई भी और चीज़ हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस without any hesitancy. I hope you guys enjoyed the session. Ali really taught well. मुझे तो अपने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स याद आ गए। मुझे हमेशा होता था क्यों भाई 4s पहले फिल हो रहा है, 3D पहले फिल क्यों नहीं होता है। Ali explained it amazingly today, and trust me, this is just the start. This course is amazing. आपको literally A to Z हम पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे, मॉक्स करवाएंगे, एंड मैं आपको एक गारंटी ये दे रहा हूँ कि अगर आपने रिलीजियसली ये कोर्स लिया, religiously pre-med के सवाल किए, so there's no one stopping you from getting more than 190 plus on the MCAT, inshallah. So if you have any questions, please send them to us on our social media. pre-med का Instagram खोलें, Facebook खोलें, मैं एक आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप फॉर एग्जाम्पल उस पर पूछ सकते हैं, और कोई और सवाल है तो हमेशा आप YouTube के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।